and that may relate to the understanding, to the preparation of your energy RF, right? And maybe that it will help you in the understanding of research. Maybe in the coming years you will have your aspiration to do PhD. Research. What do you mean by research? Research is actually a serious activity. It is a scientific activity, and it is the investigation. I'm giving you an example. On the basis of that, I'm going to operationalize what is research, right? Research means investigation undertaken in order to discover new facts or to get additional information, right? So, what three important parameters to define research? Number one, that it is the investigation undertaken. Number two, discovering new facts. Number three, to get additional information, right? So research is actually the investigation undertaken. What does it mean? Investigation undertaken. Let- Come on. What do you mean by this investigation undertaken? When I'm saying that it is investigation, it means that research starts with question. You must have a question as a researcher to set forth. You need to pose the question, just like the philosophers, the scientist, the researcher literally having the questions while going for the research. So you need to formulate the question before going to the research, and the question needs to be, formulated in a systematic way. That's why it is being called the investigation, right? Just like the Newton posed the question to a particular natural phenomena, right? He observed that the apple actually fallen on the earth. So with that falling of the apple, he literally started questioning this obvious natural phenomena. That there must be a force behind the falling of apple on the earth. So when he just started questioning the phenomena and tried to explore what are the forces behind it, so it gives the understanding of the research, right? Is research starts with question and ends with question. That's why it is a continuous exercise. It is a circular, right? Once you start with research, or maybe that your research, your finding going to be the hypothesis, right? Going to be the hypothesis for any. जी, जी. नहीं, वो दरअसल वैसे ही आएगी क्योंकि ये चार्जिंग पे भी लगा हुआ है. I have been involved in the end semester examination, so the battery has already been exhausted. Getting my point? So it cannot be vertical. It would be like this horizontal. तो मैं हटा ही देता हूँ इसको, हैं? Are you okay now? Are you comfortable with that? Am I audible? Yes, sir. Okay. I need your attention. What I'm saying that research is not to find out the obvious, but to question the obvious, right? And for that purpose, you need to pose the question. पहले ये बताइए, अंग्रेजी समझ रहे हैं आप दो ही हैं, दो या तीन, या मैं हिंदुस्तानी में बात करूं? सर हिंदी भी यूज करिए. बाकी लोग ये कौन है, शिराज हैं और कौन है? Are you comfortable with English or should I come with Hindustani? Yes, sir. I'm comfortable with English and Hindi both, sir. No problem. Okay, no problem. So मैं दोनों ही का यूज करता हूं जैसे उन्होंने भी कहा है. So first you understand the three important parameters to define research. Number one, that it is the investigation undertaken. When I am saying that it is the investigation, it means that you need to put forward your questions. देखिए, रिसर्च स्टार्ट होती है सवालों से. आपके पास सवाल होने चाहिए, इसीलिए रिसर्च को सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, राइट? इन्वेस्टिगेशन फॉर व्हाट? इन्वेस्टिगेशन फॉर द क्वेश्चंस दैट यू नीड टू पुट फॉर्थ इन योर रिसर्च. जैसे कि न्यूटन ने भी सवाल किए, सेब गिरता था, गिरता है, गिरता रहेगा. But he challenged that natural obvious phenomena, that what are the forces behind that falling of the apple on the earth. कि कोई तो forces हैं जिसकी वजह से सेब नीचे गिरा, and he started exploring that. When he is having the question, he started his research. जब सवाल था तो उसके exploration है, उसकी research है, उसका investigation है, and he formulated the laws of motion. We all might be aware about that. And many disciplines came, literally came into being that because of this posing the question.
physics, chemistry, biology, sociology, political science, history, all these branch of knowledge actually came into being with the posing of the question. There are certain circumstances that can be peripheral to you, that is being, peripheral in the society. What you need to focus on the social realities, and accordingly you need to pose the question. This is what we call the research. It is the investigation undertaken. Number one point, अगर ये इन्वेस्टिगेशन है तो आपके पास सवालात होने चाहिए, आपके क्वेश्चंस होने चाहिए माइंड के अंदर. देखिए बहुत सिस्टमेटिकली समझिएगा. इसी से मैं प्रॉब्लम तक आऊंगा, प्रॉब्लम से मैं रीजनिंग तक लेकर आऊंगा, और वहां जाकर मैं कंप्लीट करूंगा, क्योंकि मेथड को रिलेट नहीं करने वाला हूं. शायद आपका वो सेशन दूसरा होगा. तो ये पूरी एक लाइन बनेगी. इसी अंडरस्टैंड इन्हीं 3 पैरामीटर से मैं आपको रीजनिंग तक पहुंचाऊंगा, टाइटल पहुंचाऊंगा, प्रॉब्लम से पहुंचाऊंगा, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करूंगा, रीजनिंग के अकॉर्डिंगली फिर हाइपोथेसिस पर आऊंगा. ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लेक्चर है. ठीक है. तो research is the investigation, right? Then in order to discover new facts, this is the second dimension, that discovery, that you need to explore the new facts which is not to be explored yet. There are two possibilities. Ya to always, already it is being exposed to, or it is not to be explored. अगर reality को explore कर लिया है तो we need to get the updation of that. और कुछ realities ऐसी हैं जो अभी तक explore ही नहीं हो पाई हैं, so you need to go for the discovery and exploration of the realities. Getting my point? So 3 important parameters to define research. Number 1, it is the investigation, and for that purpose you need to pose the question. Number 2, that it is that you need to discover the new facts. Means that there is the discovery, there is the exploration of the facts not to be explored yet, but you need to focus on that. And number 3 is, or to get additional information. When we are saying that additional information, it means you need to update the knowledge. तो ये 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पर हम रिसर्च को डिफाइन करते हैं. ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है जो पूरी रिसर्च को एक सर्कुलर कंटिन्यूअस प्रोसेस बनाती है. अब मैं कुछ एग्जांपल देके इन तीनों पैरामीटर्स पर बात करूंगा, देन आई कम टू द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम. राइट. Just like, if you are interested in pursuing social research, and in the social research, if you're interested in political science, history, psychology, or sociology, suppose sociology, so you need to put forth what are the reasons, what are the causes of the poverty in the society. Poverty is a social phenomena. It is one of the reality in the society. गरीबी, गुर्बत, गरीबी क्यों है? Why we have poverty in the society? The question would be like, why we have drug addiction in the society? ये drug addiction है, छोटे छोटे बच्चे जो ड्रग्स लेते हैं, ये ड्रग्स क्यों ले रहे हैं? What is the problem with them? कोई तो पैटर्न होगा, कोई तो ऐसी सोशल फोर्सेस होंगी जो इनको कंपेल कर रही होंगी ड्रग कंज्यूम करने के लिए. तो हमें वी नीड टू फाइंड आउट सच सोशल फोर्सेस. अब 2 पॉसिबिलिटीज हैं इन सोशल फोर्सेस को एक्सप्लोर करने की. या तो ऑलरेडी कुछ सोशल फोर्सेस एक्सप्लोर हो चुकी होंगी. अगर कुछ एक्सप्लोर हो चुकी होंगी तो वी नीड टू गेट द अपडेशन ऑफ दैट. वी नीड टू गेट एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट इट. हमें उसकी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगनी लेनी है, या कुछ अलग पर्सपेक्टिव से हम उनको देखना है. एंड द अनदर पॉसिबिलिटी, कुछ ऐसे डायमेंशन हो सकते हैं सोशल रियलिटी के फोर्सेस के जो अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं हुए, तो वो आपको एक्सप्लोर करना है. तो ये एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी को फ्रेम करता है. Getting my point? Now, for that you need to pose the question that what are the causes? What are the causes of the drug addiction in the society? What are the causes of poverty in the society? Is the poverty is the cause of the corruption, or corruption is the cause of the crime? There are so many questions that you need to put forth. जब आप ये questions आपके माइंड में होते हैं, तो रिसर्च का जो फर्स्ट स्टेप है is the formulation of the statement of the problem, जिसको हम कहते हैं the title of the research. Every research has its own title. हर रिसर्च का एक टाइटल होता है, और वही टाइटल मेथोडोलॉजिकल टर्म में स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम कहलाता है. व्हाट वी कॉल इट? स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम. क्या कहते हैं उसको? Statement of the problem. Why it is being called the statement of the problem? Because research starts with problem, and problem means that you have questions, and that's why it is being called the statement of the problem. आप इसको टाइटल मत बोलिएगा. Methodologically it is being called the statement of the problem. You interact with the faculty members, your teachers, your maybe your friends who are pursuing research, doing PhD. Then you need to ask, what is the statement of the problem of your research? He will define that statement of the problem. In a simple term, we call it the title of the research, the title of the thesis.
but in methodologically it is being called the statement of the problem. Why it is being called the statement of the problem? Because it starts with question. Problem means that you need to pose question, and that statement of the problem is actually the guiding principle of your research. एक methodological frame of research है जिसे हम कहते हैं research process. अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, you should be aware about what the research process. There are different steps actually being involved in the research process. The ordering of these steps: step number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and goes on like that. So the first important research process, the step in the research process, is the statement formulation of the statement of the problem. अब सुन लीजिए, for the formulation of the statement of the problem, it is not like that you are just sleeping and having a dream and you literally come with your problem. आपको स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के लिए यू नीड टू गो फॉर द पायलट सर्वे, पायलट स्टडी. उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, थोड़ा लिटरेचर देखना पड़ेगा. You need to expose to the social reality if you are going for the empirical research. If it is non-empirical research, then you need to understand what is the data actually depicting, their trends and patterns. And when you literally having the brief, understanding regarding the statement of the problem, on the basis of your understanding, on the basis of your experiences, and on the basis of your comprehensive ability, you will be able to formulate the statement of the problem. This literally the important part of the research. But समझ लीजिए. And this used to, practically what has been happening in the universities, the student come up with an idea, they literally having the statement of the problem, submitted the synopsis, and once they get admitted, and after 1 year they will realize it is very difficult to pursue the research on this topic. Some practical problems are being there. तो क्या है ना कि वो बहुत हेस्ट में स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर लिया है. They were unable to just relate the research objectives with that. जब वो लिटरेचर पढ़ते हैं, सर्वे करते हैं, then they will realize they need to bring some modification and changes in the statement of the problem. And that's why it is the foremost important step in the research that you need to have the understanding, at least basic understanding of the topic that you are pursuing for the formulation of the statement of the problem. Once you've done with that, then you need to relate some research objectives. समझ लीजिए, बहुत सिस्टमेटिक चल रहा है लेक्चर. तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम से रिलेटेड ही आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना होता है. और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो गाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी पूरी रिसर्च को फ्रेम करते हैं, डिजाइन करते हैं. स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेरिएबल्स यू नीड टू फॉर्मुलेट द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. Once you are done with your statement of the problem, then you have to put forth research objectives that can be related to the statement of the problem. Objective number 1, objective number 2, objective number 3, objective number 4, objective number 5. It may varies. Some literally having 4 research objectives, some may having 7, 8, 10, 12, 15, but not more than that. Because that research objectives needs to be precise, to the point, and relevant to the statement of the problem. देखिए, रिसर्च में एक पार्ट होता है जिसको हम कंसिस्टेंट कोहेरेंस कहते हैं. कंसिस्टेंसी और कोहेरेंस रिसर्च में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिसर्च का जो रिसर्च प्रोसेस है, जो उसके कंपोनेंट है ना, वो बहुत इंटीग्रेटेड होते हैं. और हर इंटीग्रेटेड कंपोनेंट की एक रेशनल होती है, रीजनिंग होती है, लॉजिक होती है, और लॉजिकली वो कनेक्टेड होने चाहिए. तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम अगर आपने फॉर्मुलेट कर लिया है, तो ऑब्जेक्टिव्स भी उसी से कनेक्टेड होंगे. If any of your research objective which is not to be connected to the statement of the problem, it is considered as the logical research objective that can be challenged. That can be challenged. So your research objectives should be related to the statement of the problem. अब हर एक statement of the problem के अंदर you need to identify the variables. Why it is being called the variables? देखिए, variable का मतलब ही है the value is not being determined. You need to determine the value. जिसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं होती उसे हम वेरिएबल कहते हैं. जैसे मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा बेसिक अलजेब्रा के अंदर, 2x is equal to 10. We don't know the value of x. It is the variable. You put this variable x in any equation, it will have the different values. You don't have the fixed and constant value of x. Similarly, every statement of the problem literally having some variables.
and that you need to find out the variables. On the basis of that variable, you need to formulate the research objectives. मैं अपनी बात को कहने के लिए एक एग्जांपल का सहारा लेता हूँ. एक हाइपोथेटिकल मैं एक रिसर्च टॉपिक को और स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करता हूँ और उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाता हूँ, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. सपोज कि मैं स्टडी करना चाहता हूँ कि यहाँ आप लोग अलीगढ़ के ही हैं. नो सर, ओके, सपोज हम बाहर बाहर से हैं. okay, fine. If you visit center point there in Aligarh, or maybe that anywhere, and particularly the railway station, when you visit railway station, so there is, a pattern what literally I experienced and I observed some, juveniles, some, children, they literally being roaming here and there, and they literally are the drugs addict. They consume drugs. Have you ever noticed that? They literally having a particular substance in their hand and they used to have that drugs. Have you ever noticed only 6 to 7 years old children, 10 years, 15 years old children, they are roaming here and there? Anyone is having that experience? No. नो सर. In railway station you will find that, right? Okay, so if you don't have that experience, I'm just taking another example. Slum areas. Are you aware about the slums? It is one of the product of the urban society. Slum areas, jhoppadpattiyan, unorganized settlement. Are you all aware about that? Yes, yes, sir. So suppose No slum. I'm taking hypothetical, um, statement of the problem for your understanding. That that statement of the problem would be like this sanitation problem among slum dwellers in Aligarh. This is my statement of the problem. Sanitation problem among slum dwellers in Aligarh. Right? This is the statement of the problem. What I need to be specific regarding the variable? Number 1, sanitation. Number 2, slum dwellers. And number 3, Aligarh. So my objectives need to be related to these broader headings. I need to be adhere to the sanitation problems. Then I need to assess what the sanitation problems that can be related to the slum dwellers in the Aligarh, right? So this is the statement of the problem that literally I am going to have in my research, because slums literally is unorganized settlement where you do not have the arrangement of the sanitation, don't have the sanitation arrangement. So literally people literally having many problems regarding the sanitation. So this is the statement of the problem. On the basis of that, you need to put forth the research objective. Just like I'm just putting forth my research objectives. Objective number 1, to assess the sanitation condition of slum dwellers in Aligarh. Objective number 2, to relate sanitation with the health condition of slum dwellers in Aligarh. Objective number 3, to assess the socio-economic condition of slum dwellers in Aligarh. So these are the 3 research objectives literally I put forward for the understanding of this sanitation problem among slum dwellers in Aligarh. So can you relate? Can you see? Can you observe? What are the research objectives literally I forth before you? I literally formulated before you. The objectives actually being related like to assess the sanitation condition of slum dwellers in Aligarh. So it is being related to the sanitation and the slum. So my first objective is being related to the topic, related to the statement of the problem. Now come to the second one. Second one is related to the sanitation and the health condition of the slum dwellers. It is again being related to the statement of the problem. The third one is to assess the socio-economic condition of the slum dwellers in Aligarh. Third one is also being related to the statement of the problem, right? So this is what I mean to say. This is what we call the consistency. This is what we call the coherence in research. You need to relate your research objectives with the statement of the problem. इन्हीं research objectives को हम research questions कहते हैं और इन्हीं research objectives की हमें operationalization करना पड़ता है variables का. अब statement of the problem can be related to the research objectives. अब research objectives के operationalization के लिए आपको variable की sorting बता देता हूँ, सिखा देता हूँ, समझ लीजिए. हर research objectives में variables हैं.
variables, two kinds of variables in the study. Number one is the dependent variable, another is the independent. Getting my point? Independent variable जो होते हैं वो लिटरली कॉजेज होती हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो इफेक्ट होते हैं, और इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को हम साइंस कहते हैं। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिलेट करना होता है हमें रिसर्च के अंदर, ठीक है। जस्ट लाइक आई एम सेइंग दैट यू नो द लीव्स ऑफ ट्री appear green, पत्तियां जो होती हैं पेड़ की वो हरी होती हैं, क्यों? White appears green, that because of the presence of chlorophyll, green pigment called chlorophyll in the leaves, and that because of the presence of chlorophyll the leaves appear green. Getting my point? तो appearance क्या है लीफ का? ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर जो है ना, दिस इज एक्चुअली द इफेक्ट, ये इफेक्ट है, ये जुड़ा हुआ है, ये रिजल्ट है। और रिजल्ट जो है ना, जो इफेक्ट है वो जुड़ा हुआ है किससे? कॉज से। और कॉज क्या है? वो है ग्रीन पिगमेंट, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इन दोनों के डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कॉजेशन होते हैं, रिलेशन होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जब ग्रीन पिगमेंट है तो ग्रीन कलर है। अगर ये ग्रीन कलर मुझे हटाना है, लीफ का ग्रीन कलर मुझे हटाना है, तो मैं कहां पर इंजीनियरिंग करूंगा? मुझे क्या हटाना पड़ेगा? इंजीनियरिंग कहां होगी? डिपेंडेंट वेरिएबल में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में? वेयर इज द डायनामिक्स? आर यू ऑल नॉट गेटिंग माई पॉइंट? रिसर्च इज ऑल अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, आप तीन लोग हैं, बात कीजिए, बोलिए, तभी हो पाएगा, वरना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं समझ पाएंगे। दिस इज शिराज नेदा, और आप यू ऑल नीड टू इंटरेक्ट विद मी। दिस इज योर मतलब वर्कशॉप। तो वर्कशॉप में जो है ना, वो लेक्चर डिलीवर नहीं किया जाता है, डिस्कशन किए जाते हैं। आप लोग जहां कोई प्रॉब्लम हो तो बात कीजिए। आप ये समझ लीजिए वेरिएबल्स को। अगर पत्ती का कलर हरा है तो वो इफेक्ट है, और इसकी स्टडी करना है तो यू नीड टू कम अप विद द आइडिया ऑफ द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और जब कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड साइंस। गेटिंग माय पॉइंट? डायनामिक्स जो होती है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर होती है। इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर आप मैनिपुलेशन करोगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आ जाएंगे, इसलिए उसे डिपेंडेंट वेरिएबल करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल एक रिजल्ट है। रिजल्ट किस पे डिपेंड करता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। इफ यू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल में नजर आएगा। मैं ग्रीन पिगमेंट हटा दूंगा अगर उसमें से, तो आपकी जो पत्तियां होंगी वो हरी कलर की नजर नहीं आएंगी। It means the dynamics in the independent variable. Sir, you can tell the example of the recent topic, recent title you have taken, the sanitation of the people living in the slum area. Just like I have formulated one research objective, sanitation and health status of the slum dwellers in Aligarh. There must be some health problem related to the sanitation. डेंगू जब होता है तो डेंगू जो है वो प्रिवेंटिव डिजीज है, समझ रहे हैं आप उसको? या मलेरिया जो होता है वो प्रिवेंटिव डिजीज है, उनको रोका जा सकता है। प्रिवेंटिव है या नहीं है? तो ये जो हेल्थ, मलेरिया है या डेंगू है, ये सैनिटेशन की वजह से है। तो ये जो आपका जो हेल्थ कंडीशन है, ये सब डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, और सैनिटेशन यहाँ पर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। यू ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन दी सैनिटेशन पैटर्न, यू विल हैव द करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन दी हेल्थ। आपने देखा है जब भी मलेरिया या डेंगू जो है एपिडेमिक बनता है, तो गवर्नमेंट का जो सीएमओ होते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो पूरी एक पब्लिक हेल्थ सेंटर चलता है, दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। वो कहां पर? डायनामिक्स पे काम करते हैं, फौरन वो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि देखिए भाई, अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा मत होने दीजिए, और सैनिटेशन से पानी इकट्ठा होता है अगर आपकी प्रॉपर सैनिटेशन। और स्लम के अंदर नालियां होती नहीं है, घर के बाहरी पानी फेंक दिया, गड्ढों में फेंक दिया, गंदगी के लिए कोई प्रॉपर डिस्पोजेबल पिट्स नहीं है, लिटर बॉक्स नहीं है, कहीं पर भी फेंक दिया तो गंदगियों में ही रह रहे हैं ना वो, तो लिटरली हैविंग द मोर हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो अगर उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक करना है, तो वेयर इज द इंजीनियरिंग, वेयर इज द डायनामिक्स? वी नीड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द सैनिटेशन पैटर्न। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो सैनिटेशन इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओवर हियर,
एंड द हेल्थ कंडीशंस आर द डिपेंडेंट वेरिएबल। और इन दोनों की आप स्टडी करोगे, जब इन दोनों को व्हेन यू ट्राई टू रिलेट दीज टू वेरिएबल्स टुगेदर, दिस इज व्हाट वी कॉल रिसर्च। यही आपको बताना है। आपने अपनी स्टडी करी, उस स्टडी के अंदर बताया कि वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल सैनिटेशन इज रेस्पॉन्सिबल टू हैव द हेल्थ प्रॉब्लम्स अमंग स्लम डवेलर्स, और आपने अपना डेटा दिखा दिया कि देखिए साहब मेरा डेटा मुझे ये बता रहा है कि देयर इज द डायरेक्ट relationship between the sanitation and the health condition. Direct relationship means you improve the sanitation problem, then you will have the corresponding improvement in the health condition. Getting my point? Are you getting my point or not? Yes, sir. Right. So this is the way that you can relate dependent variable. तो जब आप अपने objectives को formulate कर लें, तो next step is that you need to sort out the variables. What are the dependent variables and what are the independent variables of your रिसर्च? और वो वेरिएबल्स आपको कहां से मिलेंगे? वो मिलेंगे रिसर्च ऑब्जेक्टिव से। हर रिसर्च ऑब्जेक्टिव के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हर रिसर्च ऑब्जेक्टिव के अंदर। जैसे कि पहला रिसर्च ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया आपको, सैनिटेशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम। दूसरा मेरा था टू असेस द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। यस, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी डिटरमाइन करता है स्लम डवेलर के हेल्थ कंडीशंस को। सोशल कंडीशन अच्छी है, कल्चरल पार्टिसिपेशन है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, तो फिर वो इकोनॉमिक कंडीशन होगा। तो इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब है दैट यू कैन हैव प्रॉपर हाउसिंग सिस्टम, you can have proper net system in windows, you will be more aware, you may be educated, and accordingly you can have these steps taken in the society, and you will be just protected yourself from other diseases. So again, the socio-economic condition may be act as the independent variable, and the health condition may be the dependent variable on that. And if getting my point, तो अब आप देखिए एक कंसिस्टेंसी देखिए आप। फर्स्ट आई डिफाइंड रिसर्च, then I come on the statement of the problem, then I come on the objectives of the research, then I come on the operationalization of the variables, right? अब ये operationalization of variables that you are done with that, तो एक पार्ट और होता है जब हम ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं, हाइपोथेसिस। बस यहाँ तक मुझे आपको समझाना है, ठीक है? जब ऑब्जेक्टिव्स को आपने डिफाइन कर लिया, once you are being done with your research objectives, then you need to formulate the hypothesis in your research. अब दो बातें वाज़ेह कर दूं मैं आपको, हाइपोथेसिस पढ़ा नहीं सकता हूं जब तक थोड़ी सी रीजनिंग नहीं समझाऊंगा, लॉजिक ऑफ इंक्वायरी नहीं समझाऊंगा। लॉजिक ऑफ इंक्वायरी के साथ हाइपोथेसिस का डिफाइन करूंगा, बहुत ब्रीफ डिफाइन करूंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है? रीजनिंग से रिलेट करना है मुझे, एंड दैट कीपिंग इन माइंड द पॉसिटी ऑफ टाइम। आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, दैट तो उस हिसाब से आपका लेक्चर भी टाइम के हिसाब से कम हो गया। देखिए, पहली चीज, दो पॉइंट मैं वाज़ेह कर दूं और आपको क्लियर हो जाए। नंबर 1, द रिसर्च मे हैव हाइपोथेसिस और मे नॉट हैव। दिस इज द मिसकंसेप्शन अमंग द रिसर्चर्स। उनको लगता है कि हाइपोथेसिस के बिना रिसर्च हो ही नहीं सकती है। हाइपोथेसिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिसर्च, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइपोथेसिस के बिना रिसर्च ही नहीं हो सकती। हाइपोथेसिस भी के साथ भी रिसर्च हो सकती है और हाइपोथेसिस के बिना भी रिसर्च हो सकती है। यू मे हैव हाइपोथेसिस इन द रिसर्च एंड यू मे नॉट हैव हाइपोथेसिस इन द रिसर्च। एक बात क्लियर हो जाइए आपको, बिल्कुल अंडरलाइन माय स्टेटमेंट, keep it in your mind whenever you will have the opportunity to do research. Maybe that you will have hypothesis in your research or not. अब ये कैसे पता चलेगा? हम ये how will you determine that whether you have the hypothesis in your research or not? ये भी मैंने कहा ना कि हर कंपोनेंट्स एक्चुअली बीइंग रिलेटेड टू ईच अदर, ये मेथोडोलॉजी है। मेथोडोलॉजी का मतलब ये सिस्टमैटिकली कनेक्टिंग ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द रिसर्च इन अ पर्टिकुलर डिजाइन। एक डिजाइन के अंदर जब आप पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को रिलेट करते चले जाओ, फ्रेम करते चले जाओ, दिस इज व्हाट वी कॉल द मेथोडोलॉजी, दिस इज व्हाट वी कॉल द लॉजिकल फ्रेमिंग ऑफ रिसर्च। अब hypothesis, may that hypothesis is an integral part of the research, maybe that you will hypothesis or may not have, that you need to relate it with the logic of inquiry. अब hypothesis है या नहीं और किस रिसर्च में hypothesis होगा, ये डिपेंड करेगा कि आप रीजनिंग क्या यूज कर रहे हैं अपनी रिसर्च के अंदर। रीजनिंग तो आप जानते हैं ना, नेट के पेपर 1 में रीजनिंग की स्टडी कर रहे होंगे आप लोग। रीजनिंग के बिना रिसर्च नहीं होती है।
रीजनिंग का मतलब है यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉलेज टू ड्रॉ द इन्फ्रेंसेस एंड कंक्लूजन। एंड ब्रॉडली 3 टाइप्स ऑफ रीजनिंग। वैसे तो लॉजिक ऑफ इंक्वायरी 4 टाइप्स की होती है। एक है इंडक्टिव रीजनिंग, दूसरी डिडक्टिव रीजनिंग, थर्ड वन रेट्रोडक्टिव रीजनिंग एंड द फोर्थ वन इज एब्डक्टिव रीजनिंग। जो रीजनिंग आप अपनी रिसर्च में यूज करेंगे, और आई एम सेइंग दैट रीजनिंग आल्सो बीइंग कॉल्ड द लॉजिक ऑफ इंक्वायरी, लॉजिक ऑफ इंक्वायरी, रीजनिंग ऑफ इंक्वायरी। इट मे बी द रीजनिंग और इट मे बी द लॉजिक। तो जो लॉजिक आप अपनी अपनी रिसर्च में यूज करेंगे, जो रीजनिंग आप अपनी रिसर्च में यूज करेंगे, रिसर्च का डिजाइन वही बनेगा। अगर आप इंडक्टिव रीजनिंग यूज कर रहे हैं तो इंडक्टिव रीजनिंग की एक अपनी डिजाइनिंग है, एक अपनी मेथडोलॉजी है। डिडक्टिव रीजनिंग यूज कर रहे हैं तो उसकी अपनी एक मेथडोलॉजी है। एबडक्टिव रीजनिंग यूज कर रहे हैं तो उसकी अपनी एक मेथडोलॉजी है। जैसे इंडक्टिव और डिडक्टिव की जो मेथडोलॉजी है, फिलॉसफी है, हम उसे पॉजिटिविज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल इट? Positivism. डू यू नो अबाउट पॉजिटिविज्म? आप जानते हैं? No, sir. यू शुड नो दैट। बिना उसके कैसे? आपकी तो बहुत फंडामेंटल है। फंडामेंटल आपके रिसर्च फिलॉसफीज हैं, पॉजिटिविज्म है, फंक्शनलिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है ना? तो ये तो आपको पता होना चाहिए अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या रिसर्च करेंगे आप एनीवेज। तो भाई जब व्हेन आई एम यूजिंग इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, तो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग की जो रिसर्च फिलॉसफी है वो पॉजिटिविज्म है। एंड दिस इज द रिसर्च फिलॉसफी, दिस इज द रिसर्च मेथडोलॉजी ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग जो होती है वो पर्टिकुलर टू जनरल होती है। इंडक्टिव रीजनिंग, हम वी स्टार्ट विद द इंडक्टिव रीजनिंग जब हमारे पास कोई ग्रैंड नैरेटिव नहीं होते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर रिसर्च एरिया पे काम करते हैं और उसको जनरलाइज कर देते हैं, जैसे कि स्लम एरियाज। तो मे बी दैट आई विल स्टडी सम पॉकेट्स इन अलीगढ़, 1 or 2 पॉकेट्स इन अलीगढ़, राइट? सैनिटेशन अमंग द स्लम areas in Aligarh. So I'm not supposed to study the whole slum areas, pertaining there in Aligarh, but I'm just literally focusing on the 1 or 2 pocket. So I'm very particular with my research. And on the basis of the finding, I may be generalized to the whole Aligarh. मैं पूरे अलीगढ़ के लिए generalize कर दूं. This is what we call inductive reasoning. अब जब इंडक्टिव पर्टिकुलर टू जनरल है तो इसमें हाइपोथेसिस नहीं होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर टू जनरल फॉर्मुलेट किया जाता है। डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है वो होती है जनरल टू पर्टिकुलर। जनरल टू पर्टिकुलर का मतलब है कि ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, कुछ नरेटिव्स हैं, कुछ डिस्कोर्सेज हैं, कुछ थ्योरेटिकल मॉडल है। उस थ्योरेटिकल मॉडल की मैं किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में स्टडी कर रहा हूं। दिस इज व्हाट वी कॉल द डिडक्टिव रीजनिंग। तो डिडक्टिव रीजनिंग में ऑलरेडी रिसर्च फॉर्मुलेटेड है, थियोराइजेशन है, उसको मैं पर्टिकुलर सोसाइटी में वैलिड कर रहा हूं। जैसे कि एक नैरेटिव है कि देयर इज हाई फर्टिलिटी रेट अमंग मुस्लिम्स। मुस्लिम्स के अंदर हाई फर्टिलिटी रेट होता है। फर्टिलिटी रेट का मतलब बच्चे ज्यादा होते हैं पैदा। तो व्हेन यू हैव दिस हाइपोथेसिस इन योर माइंड, व्हेन यू हैव दिस नैरेटिव इन योर माइंड, तो दिस इज द हाइपोथेसिस ऑफ योर रिसर्च। You do data collection, field work, on the basis of that you come up with your finding, right? And try to validate the hypothesis whether it is being prevalent in a particular society or not. तो आपने क्या किया कि उस hypothesis की study आपने कहा कि मैं अलीगढ़ के एक particular pocket में study करके देखता हूं कि वाकई is it true, it is like that, Muslim community having the high fertility rate. तो आपने क्या हुआ कि इस नैरेटिव के साथ गए, उस नैरेटिव की आपने किसी पर्टिकुलर अलीगढ़ की, जैसे शाहजमाल में, या आपने क्या किया कि कुछ इधर सिटी के कुछ पॉकेट्स हैं, ठीक है ना, कुछ स्लम एरियाज हैं, वहां पर मुस्लिम घेटाइजेशन है, आपने वहां पे स्टडी करी। तो अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो आपका हाइपोथेसिस है, आपका डेटा आपके हाइपोथेसिस को या तो वैलिडेट कर दे, और जब वैलिडेट कर देगा तो वो हाइपोथेसिस आपकी थ्योरी बन जाएगी। तो जनरल से आप पर्टिकुलर पर आ गए, यानी जनरल फॉर्मुलेशन था और आपने पर्टिकुलरली अलीगढ़ में लगा दिया, अलीगढ़ में भी एक पर्टिकुलर पॉकेट में लगा दिया, आपने देखिया यस इट कैन बी वैलिडेटेड और मे बी इनवैलिडेटेड, मे बी नल हाइपोथेसिस, डिवाइड ऑफ हाइपोथेसिस। तो दिस इज द पॉसिबिलिटी। तो जब आप डिडक्टिव रीजनिंग का यूज करेंगे तो हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करेंगे आप,
इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर देयर इज नो नीड टू हैव द हाइपोथेसिस इन योर रिसर्च। और इंडक्टिव और डिडक्टिव की जो मेथोडोलॉजी होती है, जो पॉजिटिविज्म होती है, ओ सॉरी, जो रिसर्च फिलॉसफी होती है, व्हाट वी कॉल इट द पॉजिटिविज्म, वो पॉजिटिविज्म होती है। एक और रीजनिंग है जिसे हम कहते हैं एबडक्टिविज्म, एबडक्टिव लॉजिक ऑफ इंक्वायरी। एबडक्टिविज्म और एडक्टिव लॉजिक ऑफ इंक्वायरी जो होती है, दिस इज literally me define that the social reality is being socially constructed by the social actor। तो कोई भी सोशल रियलिटी है, उस सोशल रियलिटी का कंस्ट्रक्शन सोशल एक्टर अपने ही परसेप्शन पे करता है। तो हमें बीइंग ए रिसर्चर उस सोशल एक्टर के परसेप्शन को और उसके मोटिव्स को स्टडी करना होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं। किसी ने किसी का मर्डर किया, तो ये ऑब्जर्वेबल फैक्ट है। किसी ने इसे ऑब्जर्व किया, आपने कहा कि भाई इसने इसका मर्डर किया है, दिस इज ऑब्जर्वेबल फैक्ट। लेकिन पूरी जुडिशरी भी इसी पे डिपेंड करती है। सवाल होता है क्यों किया। अगर सिर्फ ये देखा जाए कि मर्डर किया, तो देखिए एक ही सजा है कि भाई इनको फिर हैंग टिल डेथ, क्योंकि ही लिटरली कमिटेड अ क्राइम एंड मर्डर्ड समवन। लेकिन ये जो रियलिटी है ना, इस रियलिटी को आपको रिलेट करना पड़ेगा। वो जो किलर है, जिसने मारा है, मर्डरर है, उसके सब्जेक्टिव मोटिव्स को स्टडी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। अगर उसका रीजन ये है, कॉज ये है उस पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करने का, कि दैट ही किल्ड समवन आउट ऑफ वेंजेंस, उसने बदला लिया है, तो उसकी जो है सेंटेंस अलग होगा, जजमेंट अलग दिया जाता है। और अगर उसने डिफेंस में मारा है, इट इज एक्चुअली बीइंग किल्ड आउट ऑफ डिफेंस, तो उसका हो सकता है कि उसमें पनिशमेंट भी ना हो। तो किसी भी सोशल रियलिटी के कंस्ट्रक्शन को सोशल एक्टर के परसेप्शन समझना पड़ता है। और हर इंडिविजुअल का, हर सोशल एक्टर का परसेप्शन और सब्जेक्टिव मोटिव्स अलग होते हैं सोशल रियलिटी को लेकर। तो बीइंग ए रिसर्चर हमें फोकस करना पड़ता है उन पर्टिकुलर सोशल मोटिव्स पर। यह है एबडक्टिव लॉजिक ऑफ इंक्वायरी। तो ये हो गए आपके लॉजिक ऑफ इंक्वायरी और रीजनिंग। इन्हीं रीजनिंग के बेसिस पर ही आप अपनी रिसर्च की डिजाइन फ्रेम करेंगे, जिसे हम कहते हैं रिसर्च डिजाइन। नाम सुना है रिसर्च डिजाइन, टर्म सुनी है? Yes, sir. इसी के बेसिस पे होती है रिसर्च डिजाइन, कि वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन होगी, डिस्क्रिप्टिव होगी, डायग्नोस्टिक होगी या एक्सपेरिमेंटल होगी। यही रीजनिंग है। अगर आपने ये रीजनिंग समझ ली, तो आप इसको रिसर्च डिजाइन से रिलेट कर कर एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। एम आई क्लियर ऑन माई पॉइंट्स? एम आई क्लियर? Yes, sir. अब आप देखिए, मैं पूरा एक बार जिस्ट दे दूं व्हाट आई हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। टॉपिक था मेरा रिसर्च methodology डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। फर्स्ट, literally I have discussed the meaning of research. I discussed that research can be defined in terms of the investigation, number one. Number two, discovering new facts. Number three, updating of knowledge. Then I come upon the formulation of the statement of the problem that I define. Then I try to relate the understanding of the research objectives on the basis of the statement of the problem. मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए आपको। मैंने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को भी फॉर्मुलेट कर कर आपको समझाया। And after the understanding of the research objectives, I try to make you understand regarding the sorting of variables, dependent and independent variable. ठीक है? उसके बाद literally what I try to make you understand the importance of hypothesis. Hypothesis can be relate, or research objectives can be relate to the design, particular research design. वो डिपेंड करता है रीजनिंग पर, लॉजिक ऑफ इंक्वायरी पर। Then we discussed inductive, deductive and abductive logic of inquiry. That's it for today. Now you have 5 minutes for the discussion. If you have any question and query, please come forward. मैं थोड़ा और बोलता, लेकिन आप लोग 15 मिनट लेट आए। और टाइम रफीक साहब से मैं ले चुका था 5:30 से 6:30, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव many engagements prior to the lecture, and 6:30 मतलब 6:30 literally I have to engage myself in other academic activity। एक और सेशन है मेरा, तो 5 मिनट हैं आप लोगों के पास।
नहीं सर, आई जस्ट वांटेड टू आस्क द क्वेश्चन सर, बिकॉज एमसीक्यू से पॉइंट ऑफ व्यू से सर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स आ जाए कि सर विदाउट हाइपोथेसिस रिसर्च कैन बी कंडक्टेड। सर ये बस देखिए मैं शिराज आपको एक बात बता दूं, मैं समझ गया आपकी बात को, मेरी बात सुन लीजिए। यस देखिए मैंने इसीलिए जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक को मैंने जस्टिफाई किया है दो तरीके से। एक तो ये है कि मैंने आपके अंदर फ्यूचर पोटेंट को कंसीडर किया है। फ्यूचर पोटेंट का मतलब है कि आप एस्पायरिंग, यू ऑल एस्पायर टू बी अ रिसर्चर। नेट निकालने के बाद आप पीएचडी में एनरोल होंगे, तो आपको ये चीजें क्लियरिटी होनी चाहिए कि जब आप पीएचडी में एनरोल हो, रिसर्च कहते हैं किसको है, रिसर्च में हमें करना क्या होता है, रिसर्च को हम समझे कैसे, इसकी लॉजिक क्या है। इसलिए मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया। नंबर टू, यू कम अप ऑन द एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पूरे तरीके से डिजाइन है, ठीक है, तो वो होते हैं आपके लॉजिक ऑफ इंक्वायरी पर, क्वेश्चंस होते हैं रिसर्च फिलोसफी पर, क्वेश्चंस होते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स पर, रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं आपके एमसीक्यूज होते हैं हाइपोथेसिस पर। और वो मैंने आपको वाजे किया है। अब इससे रिलेटेड बहुत से डिटरमिनेंटल क्वेश्चंस हैं। अब आप जब भी पढ़ोगे या एमसीक्यूज देखोगे या समझोगे तो एटलीस्ट आपको स्ट्राइकिंग कर जाएगा, समझ में आ जाएगा और आप रिलेट कर पाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपने अगर एक भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई रीजनिंग की, लॉजिक ऑफ इंक्वायरी की, फिलोसफी की, आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हाइपोथेसिस की, जो कि बहुत कम वक्त में समझ सकता हूं, बहुत डिटेल में नहीं समझा पाया हूं, लेकिन अगर आप इस पूरे कनेक्शन को समझ पाए, कंपोनेंट्स को समझ पाए, तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आप इस अंडरस्टैंडिंग से उन क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब चाहे वो क्वेश्चन कोई भी हो, it would be like related to the statement of the problem, related to the logic of inquiry, it may be related to the reasoning, it may be related to the research philosophy। जैसे एब्डक्टिव लॉजिक ऑफ इंक्वायरी मैंने आपको बताया, ये एब्डक्टिव लॉजिक ऑफ इंक्वायरी की जो जिस रिसर्च फिलोसफी होती है वो होती है कंस्ट्रक्टिविज्म। इस पर सवाल आ सकता है और आते ही हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म पे भी सवाल आते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? डिडक्टिव यस सर। रीजनिंग आप लोग पढ़ रहे होंगे, बिना डिडक्टिव रीजनिंग सिलोजिज्म पढ़ रहे हैं आप लोग, अरिस्टोटल सिलोजिज्म। सर सिलोजिज्म Yes, sir. Yes. सर, सर एमयू पीएचडी में सर, एमबीए के कोर्स में नहीं है सर सिलोजिज्म सर, अरे वो भाई हो ही नहीं नेट के में। सकता, लॉजिक बिना नहीं, एमबीए कोर्स में है, आपको पता नहीं है। सिलोजिज्म है उसमें, डिडक्टिविज्म है। आपको ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं जैसे ऑल मैन आर ब्लैक, राहुल इज ब्लैक, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? राहुल इज ऑल मैन आर, हमने कहा ऑल ऑल ब्लैक मैन आर करप्ट, राहुल इज ब्लैक, तो उसके बेसिस पे डिड्यूस कर सकते हैं राहुल इज करप्ट। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं नहीं आते? सर नेट जेआरएफ का सर उसमें यूजीसी नेट के उसमें कोर्स में है सर, एमयू पीएचडी में सर नहीं है सिलोजिज्म। नहीं सिलोजिज्म है भाई, हम खुद पेपर बनाते हैं। आई एम द कोऑर्डिनेटर ऑफ पीएचडी इन एमयू, इन माय academics, in my discipline. How could you say that? पेपर वन जनरल होता है सबका। नहीं सर एमबीए वाले में नहीं सर, मैंने सिलेबस देखा है सर इसके, और अरे प्रीवियस एमबीए के ईयर के अंदर, क्वेश्चन एमबीए में भी के देखा है। स्टूडेंट तो एमबीए की जो तैयारी करते हैं ना ग्रेजुएशन के बाद, वो बिना सिलोजिज्म के पढ़े बिना एमबीए का दे ही नहीं सकते। सर मैंने तो प्रीवियस ईयर में नहीं देखा सर इसलिए हाँ मैं। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर हेडिंग में न डाला गया हो, लेकिन ये तो क्वाइट नोन है। अगर रीजनिंग ली दिया, रीजनिंग में आपको सिलोजिज्म पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, लिखा लिखा थोड़ी होता है सिलोजिज्म। रीजनिंग का मतलब ही है कि दैट यू नीड टू नो व्हाट इज सिलोजिज्म। सिलोजिज्म डिडक्टिविज्म है, आप समझ रहे हैं? सिलोजिज्म डिडक्टिव रीजनिंग पर डिपेंड करता है। यूनिवर्सल अफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव, ये सब आपने पढ़े होंगे या नहीं पढ़े? एनीवेज नहीं पढ़े हैं तो भाई ये तो रीजनिंग का पार्ट है, यू शुड ऑल नो। आप लोग फिर जब पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, और हम पीसीएस की तैयारी के जो करते हैं स्टूडेंट्स, उनको भी पढ़ना पड़ता है। तो हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, देयर मस्ट बी द क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। एनीवेज, एनी अदर क्वेश्चन? No, sir. No, sir. भाई समझ में आया आप लोगों को? कुछ Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग हुई? जो Yes, जो sir. जितना बताया सर उतना समझ में आया है। ऑब्वियसली जितना मुझे टाइम मिला उस फ्रेम में मैं जितना कर सकता था, इसलिए मैंने अपनी स्पीड भी बहुत ज्यादा रखी ताकि मैं कंटेंट ज्यादा दे दूं आपको। ठीक है, ठीक है रफीक साहब, फिर Yes, thank you. चलिए सर, ठीक। Thank you, sir. Thank you, sir. Assalamualaikum. वालेकुम।